وہاں پر جب لوگ
جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو قرآن مجید نے بڑی دیر تک ان کی سراہنا کی، بہت دیر تک وضع کیا. یعنی سورہ حج میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے توصیف کی ہے کہ حج کرنے والے بڑی دور سے آتے ہیں، کوئی دور سے آتا ہے، کوئی قریب سے آتا ہے، کوئی اس طرح سے آتا ہے. پھر اس کے یہ کہ کوئی بکرا لے کے آتا ہے، کوئی دمبا لے کے آتا ہے، کوئی ناکا لے کے آتا ہے، ایسے جانور ہیں ویسے جانور ہیں، اس طرح سے جانور آتا ہے. سب پوری توصیف کرتے ہوئے، پوری تعریف کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو تم اتنی زحمت سے جانور لے کر کے آتے ہو اور میری بارگاہ میں تم قربانی پیش کرتے ہو، ہدیہ پیش کرتے ہو، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، لیکن یہ جو تم قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے نہ اس کی ہڈی پہنچتی ہے، بل يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارے دل کے اندر جو خوف ہے، تقویٰ ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے. اسی طرح سے آپ بڑے خوف میں یہاں تک آ رہے ہیں، کیا آپ کا تبرک پہنچتا ہے؟ کہا تبرک تو نہیں پہنچتا، اخلاص مولا حسین تک پہنچ جاتا ہے، محبتیں پہنچ جاتی ہیں، ولایتیں پہنچ جاتی ہیں، کربلا تک ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے. ایک سلوات کے قرآن سے گفتگو ہے تو انشاءاللہ میں آیت پڑھ کر کے، چونکہ جیسا کہ پہلی مجلس میں حقیقت نے عرض کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہو رہا ہے ایک دو آیت کی مکمل سورہ ہے اس کی. اللہ پورا سورہ نازل ہوا ہے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، اس کو کیسے بتایا جائے. لیکن فی الحال چونکہ آیت کا ترجمہ بھی پیش نظر ہے اور آیت میں جو کہ مثال دی گئی ہے، اس سال کی ہماری الحمدللہ ساری مجلسوں میں جو بھی بات ہم پیش کریں گے مثال کے ساتھ، قرآن کی آیت، ایک روایت، اس کے بعد عقلی طور پر، پھر مثال کے ذریعے سے، تاکہ وہ ساری بات ذہن میں اتر جائے. اور الحمدللہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو ہم قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، روایت اور درایت کے ذریعے سے، عقل و نقل کے ذریعے سے جو نصیحت بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے نصیحت کرتے ہیں کہ سامنے والے کو کھلے بھی نہ اور بات اتر جائے اس کے ذریعے. اللہ اکبر. آپ غور کر رہے ہوئے یقیناً مجلس ہے، منبر ہے، منبر کا حق ہے، مجلس کا حق ہے کہ صرف فضائل میں پیش کیے جائیں، فضائل کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی پیش کیا جائے، ان کا اخلاق بھی پیش کیا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ جس کے ہم چاہنے والے ہیں، جن کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ میرا چاہنے والا پیچھے پیچھے چلے، میرے قدم بقدم چلے، میری تابعیت میں چلے. لہذا الحمدللہ بہت سی اخلاقی اور وعد و نصیحت کی باتیں بھی آتی ہیں، اور وعد و نصیحت جو کہ ماشاءاللہ سامنے تو بڑا سمجھدار مجمع ہے، لیکن یہ میڈیا کے ذریعے سے، وسیلے سے نہ جانے کہاں کہاں باتیں پہنچ رہی ہیں. ہو سکتا ہے گھر میں حجرے میں بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ جو 8-10 سال کا ہو، 12 سال کا ہو، عقل کامل نہ ہوئی ہو، وہ چڑھنے لگے، اڑنے لگے کہ ہم تو آئے تھے سننے کے لیے خندق خیبر. ایک سلوات دے جا حضرات. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ماشاءاللہ ایسے فضائل ہوں گے، ایسے فضائل ہوں گے، اور یہاں تو فضائل کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی ہو رہی ہے. وعد و نصیحت کیوں چل رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر سامنے کوئی وعد و نصیحت پر قرآن کی آیت سے، روایت سے مولا کے اخلاق پیش کیے جا رہے ہیں، کردار پیش کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی چڑ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ابھی عقل کامل نہیں ہوئی ہے. اگر عقل پوری ہوتی تو کبھی انسان قرآن پر ناراض نہ ہوتا. حدیث ابھی میں نے سے قرآن کے لیے یہ کہا ہے، جب میں مثال دوں گا تو بات اور واضح ہو جائے گی کہ کبھی بھی اچھی بات پر، عقلی بات پر، نقلی بات پر، روایی بات پر، تفسیری بات پر، بات کی بات پر، نصیحت کی بات پر، اخلاق کی بات پر، کردار کے بات پر، جلوے کی بات پر، نورانیت کے بات پر، روح انسانیت کے بات پر، روحانیت و انسانیت کو جہاں بھی پیش کیا جاتا ہے، اگر کوئی قبول کر رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کی عقل کامل ہو رہی ہے. خدا نخواستہ کہیں سے بھی چڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ابھی عقل مکمل نہیں ہوئی. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ حالانکہ میں ابھی مثال دوں تو ہماری جو بات اور ماشاءاللہ پہنچ رہی ہے ہر جگہ، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی چھوٹے بچوں کو یا ماشاءاللہ جو بچوں کو تیار کرا کے بھیج رہے تھے جلدی سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ 6 مہینے سے بچے بیچارے سب موبائل پر پڑھ رہے ہیں. ابھی وہ ساری مصیبت نہیں جو بچوں کے ساتھ ہے. بیچارہ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، ابھی جتنی اس کی عمر ہے اور جتنا اس کا بدن ہے اس سے
बदला। बहुत ज्यादा आप देखें मस्तक कितना भारी कर दिया। एक बच्चा जो बेचारा 8 साल का है, 9 साल का है, उसका वजन बहुत ज्यादा होगा, तो 30 साल का या पता चला कि 30 किलो का होगा या 32 किलो का, उसके साथ साथ कितना भारी वजन लादे हुए थे। हर तरह की किताब, हर तरह की कॉपी। मेरा छोटा बच्चा है, अभी अकल नहीं काबिल हुई। यहाँ पर सोने का रिवाज है कि मसलन वालिदैन सोते हैं 11 बजे तक, माँ बाप सो रहे हैं, बड़ा भाई सो रहा है, या और घर में जो बुजुर्ग हैं वो तो 11 बजे सो करके उठेंगे। लेकिन बच्चे की चूंकि क्लास है, लिहाजा पता चला कि बेचारा अभी नमाज कुरान किया था, अभी 7 बजने वाला हुआ, अंदर से आवाज आई बेटा जल्दी से उठ जाओ, इसलिए कि तुमको स्कूल जाना है। स्कूल तो 9 बजे का नहीं है, 11 बजे के हो, तो सुबह से है, जो कि यहाँ पर जगह की किल्लत है बम्बई में। लिहाजा बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो 2 शिफ्टों में चलते हैं कि अगर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हो गए, फिर दूसरी क्लास लगेगी, क्योंकि स्कूल कम है, पढ़ने वाले ज्यादा। मसाला वैसे बहुत है, तो वो बच्चा ही है, अभी आप काबिल नहीं। लेकिन नसीहत पर कौन चिढ़ता, मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि आप ले करके जाए। जो भी आपके लिए मिसाल दे दी जाती है वो जहन में बैठ जाती है, जो कि तकरीबन ज़हनी के लिए, तकरीबन माना के लिए है, आयत और रिवाज को समझाने के लिए। बच्चा है 8 साल का है, 9 साल का है, उसकी अक्ल काबिल नहीं है, आप उसको बार बार जगा रहे, बेटा उठो जाओ, तुम्हारे लिए गाड़ी आने वाली है स्कूल की, 8 बजने वाला है। जल्दी जल्दी बेचारा उठा, थोड़ा बहुत नाश्ता किया, हाथ मुंह धुलाया, पहुंच गया, अच्छा ठीक है, गाड़ी में बैठा दिया उसको, चला गया पढ़ने के लिए, भारी सा बस्ता लेकर के। अभी 12:30 1 बज रहा था, आया, बस्ता भी नहीं रखा कि अंदर से फिर आवाज आई, चाहे माँ कहे या बाप का, बेटा जल्दी में हाथ मुंह धुल लो, थोड़ा सा खा लो, तुमको होमवर्क जो मिला है वो बैठ करके करो। और अगर मजहबी कराना है तो कहेंगे 1 बजना पहले नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ने के बाद खाना खिलाने के बाद, अब पता चला बेचारा 2 घंटा होमवर्क किया, चूंकि दीनी माहौल है तो घड़ी देख करके कहेंगे 4 बजना बेटा मकतब भी जाना है। अभी माशाअल्लाह माशाअल्लाह वैसे बोले, चूंकि मजहबी घराना है और ऐसा घराना है कि बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि बड़े होने के बाद अगर दादा या बाप का इंतकाल हो जाए तो इतना ज्यादा अंग्रेजी न पढ़ा दी जाए कि जनाजा देख के गए वाट्स फातिहा फातिहा क्या चीज है, नहीं, इतना ज्यादा उसको मजहबी बनाओ, इस्लामी बनाओ कि जैसे इंतकाल में दूसरों को भी बताए इन्ना लिल्लाह कहो, यहाँ पर फातिहा पढ़ो, यहाँ पर कुरान पढ़ो, यहाँ पर तिलावत करो, यहाँ पर सदका करो, यहाँ पर खैरात करो, यहाँ पर मरहूम के लिए ये करो। मरने के बाद जो है बड़े बैठ गए हैं तो छोटा बच्चा इतना समझदार है कि हमारे वालिदैन में से जो गुजरे हैं, ये देखो कोई इनके सर पर वाजिब तो नहीं है, नमाज रह गई तो नमाज पढ़वा दो, रोजा रह गया तो रोजा रखवा दो, अगर हज रह गया तो हज कर मरने के बाद मुस्तहबात की बड़ी ज्यादा फिक्र हो रहती है, लेकिन सर पर जो बोझ लेके गया है उसकी फिक्र कौन करेगा, वो वाजिब लेकर के गया, ये अलग पहला जो कि मजहबी घराना है। लिहाजा अभी बेचारा 12 साढ़े 12 बजे पढ़ के आया था और 1 बजने वाला होगा, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने का खाना खा लो, खाना खा लिया, कहा कि देखो 2-3 घंटे बैठ के होमवर्क करो, इसलिए कि इतना ज्यादा काम मिल रहा है कि 3 घंटे से कम में नहीं हो पाएगा। अच्छा बेचारा किसी तरह से 4 बजे तक ये सब काम किया, कहा कि मकतब जाना है, तो छोटा बच्चा ही तो है, अभी उसकी अक्ल काबिल नहीं है, लिहाजा एतराज कर जाएगा। जब उसको उठाएंगे तो चिड़चिड़ेपन में ताना देते हुए, तंग करते हुए, बाप जान आप तो 11 बजे उठते हैं, हमको 6 बजे जगा देते हैं, बाप मी जान आप तो उठती है 9 बजे मसलन और हमको इतने सुबह जगा देती हैं, भाई से एतराज करेगा, अक्ल नहीं है, लिहाजा एतराज कर रहा है। लेकिन यही बच्चा जो 8 साल का था, आपने मेहनत कराया, मशक्कत कराया, 15-16 साल तक इतना पढ़ाया कि पढ़ने के बाद ICS हो गया, PCS हो गया, अधिकारी हो गया, इंजीनियर हो गया, मैनेजर हो गया, डॉक्टर हो गया, ऑफिसर हो गया, उसका ऑफिस हो गया, कोई बड़ी जगह मिल गई, बैंक बैलेंस हो गया। तो चूंकि 15-16 साल तक वालिदैन ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, जैसे ही ऑफिस में बैठेगा 4 पैसा देखेगा, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, पैसे की भरमार है, तो ठंडी नफस लेकर के कहेगा कि वालिदैन का शुक्रिया जो इतनी मेहनत कराया कि आज हम इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हो सकता है आज मिंबर से जो मैं नसीहत कर रहा हूँ कोई कम अमल चल जाए, लेकिन नसीहत पर अमल करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही कब्र में पहुंचे रसूलुल्लाह ने हाथ मिलाया, अली ने हाथ मिलाया, हसन ने हाथ मिलाया, हुसैन ने हाथ मिलाया, तो वहीं पे झुक के शुक्रिया करेगा, मौलाना आपने इतना
बहरहाल के दिन मौलाना साहब कह रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ करके सुना रहे हैं, रिवायत पढ़ के सुना रहे हैं, हदीस के जरिए, लिहाजा मान लेना चाहिए। मानता हुआ गया, ऐसा अमल करता हुआ गया कि जैसे ही मौला अली ने देखा, कहा यकीनन मेरा चाहने वाला है। हम हजारों दफा अली को कहते कि हम अली के चाहने वाले हैं तो हमारे लिए काफ़ी नहीं, लेकिन एक दफा अली अगर कहते सिर्फ मुस्कुरा देते, सलवात भेजा चूँकि हमारी बहस में ये आयत मुबारका जो मैं पेश कर रहा हूँ, 3 आयत में लगातार मिसाल, लिहाजा मैं मिसाल ही देता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। और कुरान के जरिए से 1-2 मिनट या 3 मिनट तमहीदी बयान में कुरान कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इस्तिफादा करना चाहिए। आपको याद है हर दिन तमहीद में 2-4 दकीका 2-4 मिनट आपका लिया जाता है, लेकिन एक बात पेश किया जाता है, कुरान से कैसे फ़ायदा उठाएं, कुरान की कैसे क़िराअत करें, कुरान का कैसे तर्जुमा पढ़ें। इसलिए कि आज हमारे दरमियान में जो कुरान मजीद है, इस पर फख्र ज़्यादा है, काम कम हो रहा है। फख्र है कि हमारे पास कुरान है, हम कुरान के साथ हैं, कुरान हमारे घर में रखा हुआ है। और यकीन जानिए अब तो इतना ज़्यादा है कि लोग बाकायदा अपने जेब में भी लेके चल रहे हैं, ताबीज़ भी बना ले रहे हैं और फख्र करते साहब हमारे पास कुरान है। तो क्या कुरान सिर्फ फख्र की किताब है या इस्तिफादे की किताब है? फिर मैं एक मिसाल देती हूँ, एक मिसाल देती ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अल्लामा नसीरुद्दीन के लिए है कि उनकी एक दावत, मुल्ला जी थे, बहुत ज़बरदस्त दावतें होती थी, लिहाजा कहीं कहीं दावतों पर अलग से फ़ायदा उठाते। एक जगह पर गए, दावत उनके जब हुए, देखे कुरान में जो फख्र कर रहे हैं हमारे पास है, इससे फ़ायदा का उठा रहा है और मुसलमान सिर्फ झूम झूम के हिल हिल के कह रहा है कुरान तो अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, कुरान अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, फ़ायदा का उठा रहा है। जैसे ही ये गए दावत खाने, नाश्ते का वक्त था, कलेजी बना करके पेश की गई। जैसे कलेजी खाया बहुत खुश हो गए कि इतना अच्छा तो नाश्ता हुआ नहीं था, इतनी बेहतरीन कलेजी बनाया। उसके बाद ये भी कह दिया कि बार बार तो आप दावत करेंगे नहीं हमारी, इतनी अच्छी कलेजी मिले, लिहाजा हमको तरीका बता दीजिए ताकि हम अपने घर में जाएं और ऐसे ही कलेजी बना करके खा लें। बहरहाल जैसे ही कहा कि ऐसा है, कागज और कलम निकालिए, हम नुस्खा लिखा देते हैं, हम तरीका बता देते हैं, आप पूरा तरीका लिख लीजिए और जाके फिर अपने घर में कलेजी बना करके खाई। मैंने बड़े खुश हो गए, एक नुस्खा लिख लिया, उसको जेब में रख लिया और झूमते हुए खुशहाल होते हुए कस्साब के दुकान पर गए, आधा किलो कलेजी लिया और कलेजे लेने के बाद अब झूमते हुए चले, फख्र करते हुए चले। कोई नाश्ता कराए या न कराए, कोई दावत करे या न करे, अब हमारे पास कलेजी भी मौजूद है, हमारे पास नुस्खा भी मौजूद है। बहरहाल अभी तक झूमते हुए चल रहे थे, आगे बढ़े, जैसे चौराहे करीब पहुंचे, एक चील ने झपटा मारा। चील का झपटा मारना था कि कलेजी वो ले उड़ी। जब कलेजी ले उड़ी तो कहा कलेजी तो तू लेके जा रही है, नुस्खा हमारे जेब में है। आज मुसलमान झूम के कुरान हमारे जेब में है, फायदा अमेरिका उठा रहा है, फायदा लंदन उठा रहा है, फायदा जर्मन उठा रहा है, हम झूम झूम के पढ़ रहे हैं, हम हिल हिल क्या समझ रहे हैं। इसलिए आप देखें कुरान मजीद ने मिसालें दिया, अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यब। अब क्या तुमने गौर नहीं किया, ऐ मेरे हबीब, क्या नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसे मिसाल दिया है। कलमा तय्यबा, ऐसा कलमा तय्यबा है जैसे शजरे तय्यबा, और यहाँ पर कलमा तय्यबा से मुराद तौहीद है, अल्लाह ताला की वहदानियत है। इंशाअल्लाह और बहस आगे बढ़ेगी तो इसको भी दरमियान में लाया जाएगा। और मसले तौहीद भी बहुत टेढ़ा मसला, बहुत मुश्किल मसला है, लेकिन जब इंशाअल्लाह मिसाल देके समझाएंगे तो हमारे बच्चों को भी ज़हन में बैठ जाएगा कि तौहीद है क्या, वहदानियत है क्या। ऐ मेरे हबीब, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं गौर किया, अलम तरा कैफा, इस तरह से तुम्हारे परवरदिगार ने मिसाल दी, दरबल्लाहु, अल्लाह ने मिसाल दी, कलिमतन तय्यबतन, कलिमा तय्यबा। कैसा है कलिमा तय्यबा? कशजरतिन तय्यबतिन, ऐसे जैसे दरख्त हो जो कि पाको पाकीज़ा, जो तय्यब व ताहिर हो। आगे बढ़ करके फिर कह दिया कि सिर्फ ऐसा वैसा दरख्त नहीं, बल्कि ऐसा दरख्त जिसमें हमेशा अल्लाह की इजाज़त से फल आता रहता हो।
बढ़ कर के ये भी कह दिया कि देखो ये अल्लाह मिसाल दे रहा है तुम्हारे लिए, लोगों के लिए अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है लालहू के तज़क्करू, ताकि लोग नसीहत हासिल करें, ताकि लोग इबरत हासिल करें। और जहाँ पर शजरे तैयबा की मिसाल दिया वहीं पर फौरन शजरे खबीसा की भी मिसाल दे दिया। मसलो कलिमतिन, उस कलिमे की मिसाल जो खबीसा है, कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन, वो कलिमा खबीसा शजरे खबीसा के तरह हमारे पास जो कहा जाता है ना कि तवल्ला के साथ तबर्रा है, जहाँ पर तवल्ला आता है फौरन तबर्रा आता है। कुरान की आयतों में जगह जगह ऐसा है, कलिमा तैयबा के बाद अगर अल्लाह ताला शजरे खबीसा को ना बयान करता तो दुनिया कहती देखो अल्लाह ताला तवल्ला ही तवल्ला कर रहा है, तबर्रे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जहाँ कलिमा तैयबा फरमाया वहीं पर फौरन कलिमा खबीसा भी फरमाया और उसकी भी मिसाल दिया शजरे खबीसा की तरह, और कहा कि देखो जो शजरे खबीसा होता है उसकी मिसाल ये है कि कभी उसकी जड़ नहीं होती, ऊपर ही ऊपर रहता है और कभी उसको करार नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1400 साल से जो बातें थी वही बातें अभी तक है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई इत्तिराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुरान पर अकीदा था वो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, हदीस पर अकीदा था हमारा क़यामत तक रहेगा, सारे जो फदाइल पर हमारा अकीदा है वो क़यामत तक रहेगा, कोई इत्तिराब नहीं है, कोई बेचैनी। क्यों? इसलिए कि हमारे पास हर मसले की जड़ है, जहाँ पर ऊपर ऊपर बातें निकलती है वहाँ पर मुस्तरिब रहते हैं, और जब मौका मिलता है तो फौरन इस तरफ आ जाते हैं कि वहाँ पर तो ऊपर ऊपर बातें की जाती है। आपके यहाँ तो कुरान से समझाया जाता है, हदीस से समझाया जाता है, अखलाकियात से समझाया जाता है। सलवात भेजे आप लिहाजा कह दिया कि माला हमिल करार, ये जो शजरे खबीसा है इसको करार नहीं है, बेचैनी है, मुस्तरिब है। अल्लाह ताला ने मिसाल देकर के समझाया। और कलमे तैयबा कलमे खबीसा इंशाअल्लाह इसी के तहत कलमे खबीसा और कलमे तैयबा में औलाद मासूमीन की बरकत और शजरे खबीसा में इनके मुकाबिल में जो आए हैं उनकी नहुसन कितना नुकसान पहुँचाया है इस्लाम, कितना नुकसान पहुँचाया है शरीयत को, हालांकि कितना ज़्यादा समझाया गया है। यकीन जानिए हमारे पास समझाने के लिए 1400 साल में उलमाए किराम ने, मुज्तहिदीन इस्लाम ने या बड़े बड़े उलमा ने जो अपना खून दिया है, अपनी शहादत दी है। मैं मिंबर से अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई तहकीकी कलम उठा ले और इस बात को लिखना शुरू करे कि हम कितना ज़्यादा इफ़हाम और तफ़हीम के चक्कर में, इम्तिहान के चक्कर में, नसीहत में कितनी जान दिया है, तो 30 जिल्द किताब इस बात पर लिखी जाएगी फेहरिस्त में कि कितने लोगों ने जान दिया है शरीयत पर, कितने लोगों ने जान और शहादत दी है इस्लाम पर, सिर्फ समझाने के लिए। कितना हमको कत्ल किया गया, लेकिन वही तरीका है जो अहले बैत का तरीका था। आज भी वैसे ही ऐसा नहीं है कि हम इतनी शहादतों को देखने के बाद, इतनी मुश्किलात को देखने के बाद घबरा के कहते नहीं साहब पहले लोग शहीद हो रहे थे, अब हम ऐसे नहीं समझाएंगे, अब तो हमको तलवार चाहिए, हमको नैदा चाहिए, हमको तीर चाहिए, हमको तबर चाहिए, हमको क्लाशिनकोव चाहिए, हमको AK-56 चाहिए, हमको AK-47 चाहिए, हमको ये बंदूक चाहिए, हमको ऐसा बम चाहिए। नहीं, अभी भी हम चाहते हैं वही नरमी हो जो रसूल की नरमी थी, वही लयनत हो, वही मेहरबानी हो, वही बुलावा हो, वही दावत हो, वही तयम्मुन हो, वही तबर्रुक हो, वही इनायत हो, वही चाहत हो, वही मोहब्बत हो, वही मुरव्वत हो, वही इत्तेहाद हो, वही लयनत हो, वही नरमी। सलवात भेजिए आप। इतना सब कुछ होने के बावजूद 1400 साल में कितना हमको काटा गया, कितना छाटा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने मजहब के सिलसिले में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हमारा नौजवान भी है तो इतना काबिल है, इतना फादिल है कि हुकूमत में चाहे हुकूमत वक्त का बादशाह क्यों ना बैठा हो, कोई घबराहट नहीं। एक नौजवान को पकड़ के लाया गया मंसूर दवानिकी के दरबार। देखिए हमारा नौजवान कहीं डरता नहीं है, कहीं घबराता नहीं है, 18-19 साल का नौजवान है, उन शबाब पर है, अभी उसकी रेखा भी नहीं निकली है, लेकिन क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है। इसलिए कि करबला के बाद इतना ज़्यादा पढ़ाया गया है, इतना ज़्यादा भराया गया, ऐसा नहीं किसी दौर में नहीं, करबला के बाद इमामों ने इंतजाम किया है, बाकायदा तौर पर अपने घर में भी बैठ के जिसको बुलाते थे पढ़ाते रहते थे, मजलिस के बहाने से, अदादानी के बहाने से। यहाँ तक कि कुछ इमामों के बारे में मिलता है कि वसीयत करके जाते थे, हमारा इतना
बंदे झुकी हुई है। जर्मन जैसी हुकूमत झुक गई, अमेरिका जैसी हुकूमत झुक गई, 5 जो ममालिक बड़े बड़े हैं वो इस नादीदा मरज के सामने झुके हुए हैं। ज़्यादा घबराने की बात है, डरने की बात है। लेकिन जब दुश्मन सामने रहता था, आप तारीफ उठा के देख लें, हमारा कोई नौजवान या कोई भी बंदा मोमिन डरा नहीं। यहाँ तक कि मोमिन भी इंशाल्लाह बातें आएंगी, घबराए, चाहे बनी उमैया का दौर हो, बनी अब्बास का दौर हो, या उसके बाद और जो जालिमों फाजिलों जाहिलों काहिल आए हैं और इस्लाम के मुकाबले में आते रहे हैं, ऐसे ऐसे फसादी आते रहे हैं कि उनका नाम भी मिंबर से नहीं लिया जा सकता, ऐसे ऐसे जालिम आए। लेकिन हमारा नौजवान कभी डरा नहीं, कभी घबराया नहीं, लेके पकड़ के उसको दरबार सजाया गया, सारा मजमा बैठा हुआ, जल्लाद सामने बैठा हुआ। मंसूर ने कहा कि सुना है कि तुम लोग बहुत अली अली करते हैं, नौजवान लड़का है, तुम लोग बहुत अली अली करते हो। उसने कहा इसमें क्या शक है, हम मौला की शहदाई है, फिदाई है, अपने मौला का चर्चा करते हैं, तारीफ करते रहते हैं। कहा इतना अली अली करते हो, क्या बता, क्या तुमको याद है या कहीं तुमने पढ़ा है कि तुम्हारे अली पर एक दफा भी जिब्राइल आए हो? हमारे रसूलुल्लाह पर तो 24,000 मरतबा आए। बहरहाल नौजवान देखिए कहीं से डर नहीं रहा, कहीं से घबरा नहीं रहा। कहा फिर से बताओ कि रसूलुल्लाह पर कई दफा जिब्राइल आए? कहा कि 24,000 मरतबा। कहा रसूल पर 24,000 मरतबा आए तो मेरे अली पर 48,000 मरतबा जिब्राइल। क्या 48,000 मरतबा। एक मरतबा जल्लाद को इशारा करता कि आमादा हो जाओ, कहता साबित नहीं कर पाए तो जल्लाद सामने बैठा, कहा हम साबित करेंगे कि अगर हमारे रसूल के पास 24,000 मरतबा जिब्राइल है। हालांकि अहमद इब्न हंबल ने 12,000 मरतबा फरमाया है कि 12,000 मरतबा जिब्राइल है। अहमद उन्होंने तौजीह की है और अलग से वो बहस है। लेकिन ये नौजवान लड़का ये कह रहा है मंसूर को सुनने के बाद, मंसूर जवानी को सुनने के बाद कि मेरे मौला के पास 48,000 मरतबा है। छल्ला जाता है, परेशान हो जाते हैं। इतने बड़े मजमे में सुर्खी पैदा हो गई। एक नौजवान ने सर झुका दिया, कहा साबित करना पड़ेगा। कहा हम साबित करेंगे। एक मरतबा जैसे ही उसने ये जुमला कहा, लड़के ने कहा क्या तुमने हदीस नहीं सुनी है रसूलुल्लाह की? अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। और हमेशा की बात ये, दरवाजे पर जो बैठा होता है तो जो भी दाखिल होगा पहले दरवाजे वाले से मिलेगा, फिर अंदर जाके मिलेगा, उसके बाद वापस होगा तो फिर से मुलाकात करेगा। तो रसूलुल्लाह शहर के अंदर बैठे हुए हैं, जिब्राइल एक मरतबा हाथ मिलाते थे, अली से 2 मरतबा मिलाते थे, एक दाखिल होते वक्त एक खारिज होते। अल्लाह दुनिया समझ ले। फिर इसको मैं मिसाल से साबित कर दूं, इसलिए कि ये सिर्फ वाकया नहीं है, रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, हदीस में भी है और मौला ने भी फरमाया। नजमुल अलगा में भी मौला ने बहुत देर तक ये गुफ्तगू फरमाई है और बहुत ही सलीस तरीके से समझाया है कि मैं कैसे जिब्राइल की थमक को महसूस करता था। इल्हाम और आयतें जब नादिल होती थी सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं देखते थे, मैं भी देखता था। मौला कायनात ने पूरी तस्बीह दी। और रिसालत माम ने जब अली को देखा, फिर मैं मिसाल तो बता की बात हो जाए, अली को देखते ही फरमाते हैं या अली अंता तरा मा अरा, ऐ अली तू वही देखता है जो मैं देखता हूँ। तस्माओ मा अस्मा, ऐ अली तू वही सुनता है जो मैं सुनता हूँ। मौला कायनात कह रहे हैं कि मैं जिब्राइल का आना भी देखता था, जिब्राइल का जाना भी देखता था, जिब्राइल की थमक का भी एहसास मुझे हो जाता था। दुनिया कह रही है, लेकिन यहाँ पर एक तो मौलानी ने फरमाया, दूसरे रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहजुल बलागा में मौजूद है, अखबार रसूल में मौजूद है। अच्छा मौला फरमा रहे हैं कि जब भी जिब्राइल आते थे मैं उनकी थमक का एहसास करता था, उनके आने का एहसास करता था, उनके जाने का एहसास करता था। यहाँ पर अगर कोई एतराज कर जाए कि ये क्या बात हुई, जब रसूलुल्लाह बैठते थे मस्जिद या मेहराब में तो वहाँ काफ़ी सहाबा भी बैठते थे, एक तरफ अली बैठते थे, कभी कभी इमाम हसन इमाम हुसैन भी आगे बैठ जाते दानों पर, अली दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, वही का सिलसिला होता था, रसूलुल्लाह खामोश हो जाते थे। लेकिन इतने जो असहाब बैठते थे उनको जिब्राइल नजर नहीं आते, अली को सिर्फ नजर आते थे। ये कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पर इतना मजमा हो? मसलन माशाल्लाह इतना मजमा सामने हमारे बैठा हुआ है, अगर यहाँ से दरवाजा खोल दिया जाए, बिजली चमक रही तो सभी देखेंगे कि साहब बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। अब कोई उसमें से एक कहते साहब बिजली का चमकना भी मैं देखता हूँ, बारिश का होना भी मैं देखता हूँ, तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। तो मौला ने कहा
लाए हुए हैं, निकाई लाए हुए हैं, इजराइल लाए हुए हैं, महिलाई लाए हुए हैं, सलसाई लाए हुए हैं, फलक से बहुत से चाहने वाले आए हुए हैं, सारे फलक आए हुए हैं। कोई ताम लेकर आ रहा है, कोई कलाम लेकर आ रहा है, कोई कलाम लेकर आ रहा है, कोई सलाम लेकर आ रहा है, कोई इल्हाम लेकर आ रहा है, कोई वही लेकर के आ रहा है, कोई आयत लेकर के आ रहा है, कोई हदीस कुर्सी लेकर के आ रहा है, कोई सलाम करने आ रहा है, कोई झूला झुलाने आ रहा है, कोई हसन को खिलाने आ रहा है, कोई हुसैन को खिलाने आ रहा है, कोई शहजादी के सामने झुक के सलाम करने आ रहा है, कोई तलाक करने आ रहा है, कोई क्या सुन रहे हैं आप? बड़ी आसानी से सलाम भेजना बता। ये कैसे हो सकता है कि आसमान में फरिश्ते आए और वहां पर बैठे हुए सहाबा को नजर ना आए, अली को नजर आ जाए? और अली ये कह भी दे कि हम आना भी देखते थे, जाना भी देखते थे, उनकी धमक का भी एहसास होता था। ये कैसे हल किया जाए? अदीदान ईमान, आखिर वजह क्या है? ऐसे वाकयात बहुत, ऐसे हालात बहुत हैं कि बाकायदा तौर पर कभी कभी अली ने इकरार किया, कभी कभी नबी ने पूछा। मेराज पर मसलन जाने के बाद जब मेराज से वापस आए तो मौला मुत्तकिया ने मुस्कुरा के कहा, ऐ मेरे भाईजान, मेराज की खबर आप सुनाएंगे या मैं सुना दूं? अल्लाह अकबर। उसके अलावा बहुत इंशाअल्लाह आप मदीने जाएंगे तो वहाँ एक मस्जिद आपको नजर आएगी जिसको मस्जिद किबलतैन कहा जाता है, यानी एक ही वक्त में दो किबला की तरफ नमाज हुई। तो वहाँ नमाज और पढ़ने वाले थे, लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह को वही हुई और ये हुआ कि बैतुल मुक़द्दस से घूम जाए काबे की तरफ, तो सिर्फ अली क्यों मुड़े साथ साथ? इसलिए कि नफ्स रसूल है, जो अली के दिल में है वही नबी के दिल में है, जो नबी के दिल में है वही नफ्स है। जान कुरान की आयत भी है, रिवायत इंशाअल्लाह बातें किया जाएगा, आयत भी इसके ऊपर है कि कैसे नफ्स और नफ्स उसे कहते हैं जो हर बात की खबर रखता है। मतलब आपका नफ्स है, आपको खबर नहीं होगी तो किसकी होगी? इसलिए कि आपका नफ्स जो बदन को एहसास होगा नफ्स को होगा, जो नफ्स को होगा बदन को होगा। पर आयात रिवायात बहुत है, तो यहाँ पर मौला ने जो फरमाया इसको कैसे समझाया जाए? देखिए माशाल्लाह यहाँ फर्श बिछा हुआ है और सुतून है, मस्जिद की दीवारें हैं, और सिर्फ मस्जिद की दीवार और सुतून और ये फर्श वगैरह नहीं है, बल्कि न जाने कितनी खबरें हैं जो यहाँ पर उड़ रही, न जाने कितनी। अगर कहीं क्रिकेट हो रहा है तो क्रिकेट की भी खबरें यहाँ से उड़ करके जा रही, कहीं पर कोई हादसा वाक़या हो गया तो उसकी भी खबर, लेकिन आपको एहसास नहीं है, इसलिए कि मोबाइल बंद करके एहतराम मजलिस में बैठे हुए हैं आप, या कोई खबर की चीज नहीं लगाए हुए हैं, वरना जो फिजा में चीजें उड़ रही हैं खबरों की, वो सारी चीज मसलन अगर दिल्ली में मैच हो रहा हो और मैच होते हुए लोग वहां पर देख रहे हो, आपको मालूम करना हो कि कितना स्कोर हुआ, तो आपको क्या माइक के जरिए से स्कोर मालूम हो जाएगा, मिंबर के जरिए से मालूम हो जाएगा, लकड़ी के जरिए से मालूम हो जाएगा, या फर्श के जरिए से मालूम? नहीं साहब, इसके लिए तो जरूरी है कि एक मशीनरी हो, एक जो है टीवी को लगाया जाए या कोई ऐसे आले को लगाए जो कैच करे खबरों को। अच्छा, वहां पर मैच हो रहा था, दो टीमें खेल रही थी, यहाँ पर आपने टीवी लगाया और जैसे ही बटन ऑन किया, मरकज से तार को जुड़ा, उड़ती हुई खबरों को कैच किया टीवी ने, आपको दिखा दिया कि जो है 100 अदद इस वक्त इनका रन हो चुका है, यानी स्कोर जो है 100 हुआ है। अभी आपने 100 जैसे ही देखा, ये सोचा कि देखे यही टीवी सही कह रही है, या एक टीवी होगा कि उसका बटन ऑन किया तो देखा जो 100 स्कोर इसमें आ रहा था वही 100 स्कोर इसमें भी आ रहा है। हम कहेंगे दो टीवी रखी हुई, दोनों में 100 ही क्यों आ रहा है, 101 क्यों नहीं आ रहा है, या 99 क्यों नहीं आ रहा है, या फर्स्ट को अलग क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ साहब नहीं, इसलिए कि चूंकि इसका मरकज से राबता है, इस टीवी का भी राबता है, जो इसका राबता है वह इसका राबता है, जो इसमें बल्ब है वह इसमें बल्ब है, जो इसमें चैनल्स है वह इसमें चैनल्स है। तो याद रखे, जितने बैठे थे रसूलुल्लाह के सामने सब कंकड़ पत्थर और फर्श की तरह थे, लेकिन यहाँ जो नूर है मिन नूरिन वाहिद, जो रसूल का नूर है वही अली का नूर है, जो रसूल देखते हैं वही अली का। अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं है कि आपने टीवी लगा दिया, मरकज से तार को जोड़ दिया, बटन को ऑन कर दिया तो अब इसमें 100 स्कोर आएगा तो दूसरी टीवी में 101 आएगा। नहीं, चूंकि दोनों का नूर एक है, दोनों का मंबा एक है, दोनों का मरकज एक है, दोनों का कैश करने का तरीका एक है, लिहाजा जो नूर रसूल का है वही नूर अली का। जो
चीज़ें जो हैसियतें रसूल अल्लाह को दी गई, मेरा ये बहस में छेड़ना नहीं चाह रहा था इंशाअल्लाह, और बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। फ़ज़ाइल और तमाम दक़ाइक़ को हमको गौर से सुनना और समझना पड़ेगा, सुनने के बाद गौर करना पड़ेगा। यकीनन ये अहादीस है, अहादीसें मुश्किल है, बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो किताबों के अंदर बंद है, उनका समझना समझाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन जब मिसाल के जरिए से समझा दिया जाए तो बात हो जाती। जैसा रसूलुल्लाह ने एक हदीस फरमाया, वो हदीस ऐसी है कि अगर आप गौर करें तो समझ में नहीं आएगा। एक ही वक्त में रसूलुल्लाह पढ़ाते क्यों चले जा रहे, इसलिए कि बैठे हुए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दानों पर आ गए। इमाम हुसैन को जैसे ही देखा नाना ने अपने नवासे को, फौरन कहा यकीनन ये वाक़या होगा, और करबला में जो इसकी ज़ियारत करने जाएगा अल्लाह ताला उसको एक हज का सवाब देगा। ये सुनना था कि एक मुअज़्ज़मा बैठी हुई थी वहीं पर। मुअज़्ज़मा ने फौरन ताजुब किया कि करबला की ज़ियारत पर एक हज का सवाब। जैसे ताजुब करना था रिसालत मां मुस्कुराए, फरमाया 2 हज का सवाब मिलेगा। और आप कहेंगे एक ही वक्त में ये क्या, वहाँ ये देखो अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा, ये तो वही के मुताबिक बोलता है, ये तो कुरान के मुताबिक बोलता है। मुअज़्ज़मा अगर तहज्जुद में पड़ गई, ताना दे रही है, तो रसूलुल्लाह ने 2 कर दिया। फिर वो बोले क्या 2 हज का सवाब मिलेगा, रसूलुल्लाह ने 3 कर दिया। फिर ताजुब किया, 4 कर दिया, यहाँ तक कि 10 तक पहुंचे तो वो बर्दाश्त न कर सकी, उठ के चली गई वहाँ। सलवात भेजिए। अगर वो ताजुब करती रहती तो रसूलुल्लाह आगे बढ़ते चले जाते कि मेरे बेटे की ज़ियारत का सवाब इतने हज का सवाब है, इतने हज का सवाब। अच्छा माशाअल्लाह, चूँकि हज के अलावा उम्रे का भी लफ्ज़ है कि जो भी हज वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाएगा और एक मकाम तक पहुँचने के बाद क़ियादा ज़ियारत, हमारे पास जो पैदल चलने की रिवायत है यहीं से है कि एक खुतबे पर, एक कदम पर, खुतबा यानी कदम, एक कदम पर एक उम्रे का सवाब मिलेगा। ये सिर्फ हदीस नहीं है, बल्कि अभी 4 या 5 साल हो रहा है, एक जर्मन के मीडिया वाले ने जो वहाँ पर उसका चैनल लगा हुआ था, सारी चीज़ों को पेश कर रहा था और रास्ते में भी चल के देख रहा था नजफ से करबला तक। उसको एक ज़ईफ़ पर ताजुब, वो तकरीबन 86 साल का ज़ईफ़ इंसान कहाँ से आ रहा था पैदल, बसरा से पैदल आ रहा, तो सारा मजमा छोड़ करके ला करके उसने माइक सामने लगा दिया और इंटरव्यू लेने लगा कि बताइए आप कहाँ से पैदल आ रहे हैं। चचा मियाँ ने कहा कि ऐसा है कि मैं बसरा से पैदल आ रहा हूँ। और पूछा उम्र क्या, हमारी 86 साल की उम्र। बहुत से सारे मसाइल उसने पूछा, बड़ी सारी बातें हुई, आखिर में उसकी नज़र पड़ी कि ये चलते जा रहे हैं और बात करते चले जा रहे हैं। और उसने ये गौर किया कि लोग चलते हैं, दूर का सफर होता है तो कदम लंबे लंबे बढ़ाते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी कदम रख रहे हैं, छोटा छोटा, एक बारिश का। एक मतलब ठहर के पूछता है, ये बताइए और सारे लोग तो बड़े बड़े कदम रख रहे हैं, आप छोटे छोटे कदम। लेकिन मोमिन कईस होता है, मोमिन चालाक होता है। कहा तुमने हदीस नहीं पढ़ी, मैंने हदीस पढ़ी है कि हुसैन के रोज़े की तरफ जितना कदम बढ़ेगा एक उम्रे का सवाब मिलेगा। अगर मैं चाहूँ तो 2-2 कदम आगे बढ़ूँ, छोटा छोटा कदम इसलिए है कि उम्रे का सवाब लेना है, हज का सवाब लेना है। जब क्या सुन रहे हैं, अल्लाह अकबर, बड़ा प्यारा जवाब दिया हदीस के मुताबिक। तो जैसे ही 10 हज के हदीस है मुश्किल है, यकीनन जो कि 82 साल के अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्किल मरहले से तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़े तस्बीहात, बड़े मिसालात और तमसीलात होगी जो गाढ़ी वैसे हैं, उसको मिसाल दे देकर के ताकि ज़हन में बैठ जाए। और जहाँ तक हमारे नौजवान सुन रहे हैं, इसको कहा जाता है हदीस मुश्किला, जिसको तहम्मुल करना सबके पास बस की बात नहीं। लेकिन कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए कि रसूलुल्लाह हर सेकंड को बदलते जा रहे हैं, ये ताजुब करती जा रही है, 1 हज का सवाब, 2 हज का सवाब, 3 हज का सवाब। ये कैसे हो सकता है कि 1-2 मिनट के अंदर रसूलुल्लाह 10 रंग की बात कर जाए। वही ज़ियारत है, वही हुसैन का रौज़ा करबला है और रसूलुल्लाह हर बात पर कहते जा रहे हैं तुमको ताज्जुब हो रहा, 2 हज का सवाब मिलेगा, तुमको ताज्जुब हो रहा, 3 हज का सवाब। और कौन मुअज़्ज़मा है आपके ज़हन में बात पहुँच रही, सलवात ये है, उनका नाम मिंबर से नहीं लेना, इसे दुश्मनाने अहले बैत का नाम है मिंबर से नहीं लेना। जो अहले बैत के दुश्मन, जो हसन की दुश्मन हो, जो हुसैन की दुश्मन हो घर में रहते हुए, जो मौला अली की दुश्मन हो और मौला के मुकाबिल में चमन में आगे सलवात भेजिए। ऐसे मनहूस का नाम नहीं लिया जाता, ज़्यादा इशारा काफ़ी है कि ताज्जुब होता रहा, रसूलुल्लाह बढ़ाते चले गए, 1 हज, 2 हज, 3 हज। अब यहाँ
वक्त में कह दिया जाए 1 हज का सवाब, दूसरे वक्त में कह दिया जाए 2 हज का सवाब, फिर कोई तालीम करे तो 3, यहाँ तक कि 10 कहा तो उठ के चली गई मुअत्तमा, बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा रुक गए रसूलुल्लाह, वरना आगे और बढ़ते। अब आपके समझ नहीं आ रहा भाई ये कैसे हो सकता है कि ज़ियारत एक हो और उसमें इस तरह से फरमाए 1 हज का सवाब 2 हज का सवाब। याद रखिएगा जो भी सारी कायनात से ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, एक रंग का मजमा नहीं है जो करबला जा रहा है। अंबिया भी आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, औलिया भी आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, आयतुल्लाह भी आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, मुस्तहिद भी आ रहे हैं ज़ियारत, माशाअल्लाह बात पहुंच रही है, आलिम दीन भी जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, मुत्तकी और परहेज़गार भी जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, मोमिन भी जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, अवाम भी जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। तो जब अंबिया या आइम्मा आते हैं तो उनकी मारिफत इतनी होती है कि मारिफत के साथ 10 हज का सवाब ले जाते हैं, थोड़ा मारिफत कम हो जाती है तो 9 हज का लेके जाते हैं, आयतुल्लाह मुज्तहिद है तो 8 का लेके जाते हैं, आलिम है तो 7 का लेके जाते हैं, मुत्तकी है तो 6 का लेके जाते हैं। तो जितनी मारिफत बढ़ती जाती है हज का सवाब बढ़ता चला जाता है। ये जो बार-बार फरमाया मारिफत में फरमाया है कि ज़ियारत करने वाले एक तरीके के नहीं हैं, अंबिया भी आएंगे, औलिया भी आएंगे, अतकिया भी आएंगे, सुलहा भी आएंगे, मुमिन भी आएंगे, मुत्तकीन भी आएंगे, आयात एलान भी आएंगे। सलवात भेजिए हदीस मुश्किल थी, लेकिन हमको लगता है कि आज की मजलिस में अगर यही मैसेज लेके चले गए बहुत बड़ी बात, जो कि ऐसी हदीसों को समझाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर। और ये आपके किस्मत की बात है, नसीब की बात है, क्योंकि बहरहाल यहाँ तमसीलात और तशबीहात के अलावा एक तो वक्त पर भी हम नजर रखते हैं, दूसरे ये कि जो टाइम है उससे बात आगे न बढ़ने पाए, और मुनासिबात का भी ख्याल है कि जो मसाइल पढ़ना है तो उसके रब्त में भी 2-4 जुमला फजीलत का आना चाहिए, ताकि मसाइल समझ में आए किसकी मुसीबत हम सुन रहे हैं, कितनी बड़ी जगह आपको मिली हुई है, कितनी मुक़द्दस जगह आपको मिली हुई है। इसलिए कि यकीनन आज सारी कायनात में जिसका तज़किरा हो रहा है उस बीबी ने दिया है फर्शे, लिहाजा कभी भी आपको हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो 2 चीज़ आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाती है। बस मैं यहाँ से बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह, फिर बहस को आगे बढ़ाऊँगा कि 2 चीज़ ज़हन में आती, चाहे महफिल हो, चाहे मजलिस हो, चाहे जलसा हो, चाहे सेमिनार हो या कोई भी प्रोग्राम हो, तो एक इंसान के ज़हन में जो पढ़ा लिखा है फौरन उसके ज़हन में आता है कि इसके लिए 2 चीज़ का होना ज़रूरी है, एक पानी का होना ज़रूरी है, एक बारिश का होना ज़रूरी है। जहाँ पानी और बारिश होता है कोई खलल अंदाज़ी नहीं होती है, तो ये मजलिस का पानी कौन है? पानी शहजादी ज़ैनब है, वारिस हमारा पांचवा देखने वाला है, इमाम गैब है, इमाम ज़माना है, जो वारिस मजलिस है, और शहजादी ज़ैनब पानी है मजलिस। अल्लाह अकबर। लिहाजा पानी का भी पता होना चाहिए और बारिश का भी पता होना चाहिए। पानी ने कैसा करिश्मा किया है, कैसा मोजज़ा दिखाया, कैसी करामत दिखाई। अल्लाह अकबर। इतनी मुसीबतों के बावजूद, इतनी आफतों के बावजूद ऐसी जगह पर आपने फर्श अदा बिछाया कि जिसको यजीद का घर कहा जा रहा है। कहाँ पर जगह खाली करवाई? यजीद के घर में। शहजादी की ये मंतिक है, शहजादी का ये फलसफा है। सानिया ज़हरा एक बात की तरफ इशारा करना चाहती है कि मजलिस ऐसी चीज है कि जब यजीद ने रुकवा सका तो यजीद से बढ़ के कोई नहीं हो सकता है। जो लोग घबराए मजलिस कैसे होगी, मजलिस कैसे मजलिस की बिना हो रही, बुनियाद डाली जा रही है कि देखो ऐसी जगह पर न घबराओ जहाँ पर यजीद जैसा जालिम। अब तो यजीद से बढ़ के कोई जालिम हो नहीं सकता, खूनी से बढ़ के कोई जालिम हो नहीं सकता, शिम्र से बढ़ के कोई जालिम हो नहीं सकता, इब्न ज़ियाद से बढ़ के कोई जालिम हो नहीं सकता, उमर साद से बढ़ के कोई जालिम हो नहीं सकता। खुदा मनूस पर लानत करे कि ऐसे ऐसे जालिमों को छुड़मुट में शहजादी ज़ैनब मजलिस करके बता रही है कि क़यामत तक अब मजलिस को इत्मीनान से करना, घबराने की जरूरत नहीं है कि जब यजीद से मैं नहीं कर रही हूँ। और दूसरे कि जब बारिश कभी होता है, निगहबान कभी होता है, तो उसमें कोई घबराहट नहीं होती। आज यही तो सवाल है कि इतनी ज़्यादा दुश्मनी के बावजूद बाकायदा दुनिया में बैठ के रिसर्च किया जा रहा है। बाकायदा ये जो यहूदी कौम है या पैसे वाले हैं, चाहे अरब के हो चाहे जहाँ के, यहाँ बैठ करके रिसर्च तय कर रहे हैं कि ये कौम कैसे आगे बढ़ती चली जाए, कैसे रुकावट डाली जाए, कैसे इनको रोका जाए। यानी
مجلس کے خلاف یہودیت بھی ہے، وہابیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، زندیق بھی ہے، منکر بھی ہے، خائن بھی ہے، دولت والے بھی ہیں، مال والے بھی ہیں، اور ظاہری طور پر ہیبت والے بھی ہیں، میڈیا والے بھی ہیں، حکومت والے بھی ہیں، شہرت والے بھی ہیں، یہودیت بھی لگی ہوئی ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آخر یہ فرش ادا کیوں بھی چلا ہے؟ ساری کائنات میں حسین حسین کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا وارث اتنا قوی ہے کہ وہاں تک کسی کی مجال نہیں ہے کہ آگ میں آگ ڈال دے۔ اس کا وارث زندہ ہے، اس کا وارث حاضر ہے، اس کا وارث ناظر ہے، اس کا وارث نگہبان ہے، اس کا وارث بچانے والا ہے، جس کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ لہذا بانی مجلس بھی آپ کے ذہن ہونا چاہیے کہ مجلس کی بانی کون ہے؟ ثانیہ زہرا ہے، اور اس مجلس کا آج وارث کون ہے؟ امام زمانہ۔ بلکہ اگر یہ جملہ کہا جائے کہ امام غائب تو یہ غلط جملہ ہے، صحیح نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جو سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے امام کو تو ہم غائب ہیں، وہ حاضر۔ دنیا نے الٹا جملہ اڑا دیا ہے کہ امام غائب ہے، ہم حاضر، ہم غائب ہیں کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پر حاضر ہے، ہم پر ناظر ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا بچانے والا ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارے نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت دیا ہے، طاقت دیا ہے، حیبت دیا ہے، جلال دیا ہے، جمال دیا ہے، علم دیا ہے، حکمت دیا ہے، طاقت اور شہرت دیا ہے، وہاں سے ہم کو بچانے والا ہے۔ لہذا جب ایک وارث اتنا قوی ہو تو پورا امریکہ بھی آ جائے مجلس رکنے والی نہیں ہے، پورا کینیڈا بھی آ جائے مجلس رکنے والی نہیں ہے، پوری وہابیت آ جائے مجلس رکنے والی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اذان عالیہ میں یہ بات آ گئی، ایک وارث موجود ہے، ایک بانی موجود ہے، اور بانی کیسی عالمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فضائل دے رکھی۔ میں اشارہ کروں گا اس لیے کہ ربط مسائل سے پہلے فقیر کی عادت ہے، بالخصوص پورے ہندوستان میں، چونکہ باہر تو بہت کم جانا رہا لیکن جہاں بھی گئے ہیں، بہرحال مسائل سے پہلے دو چار کلمہ آیات و روایات سے کہ کیا فضیلت ہے جس کا ذکر ہونے والا ہے۔ اور یقیناً جب ماں کا کردار ایسا ہو تو بچے کیسے ہوں گے؟ لہذا بچوں کے لیے ماں کا اثر بہت اہم ہوتا ہے۔ کیا فضیلت دے رکھی؟ ظاہری طور پر تو یہ چہٹا معصومیت بھی نہیں ہے، لیکن محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے۔ شہزادی زینب عباس بہرحال ذہن میں بات آ گئی کہ اس کا بھی ایک ایراد و اشکال، اور اس کا جواب دیتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں کہ محفوظ عن الخطا ہے عباس علمدار بھی اور شہزادی زینب، چہٹا معصومیت کا جو درجہ ہے وہ نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ نے خاص درجہ دیا ہے، لیکن یہ دونوں کی فضیلت بھی ایسی ہے کہ ان سے کم نہیں ہے۔ وہ زہرا ہے تو یہ ثانیہ زہرا ہے، وہ علی ہے تو یہ ثانیہ علی۔ عباس علمدار ثانیہ حیدر کہے جاتے ہیں، یہ ثانیہ زہرا کہی جاتی ہیں، لیکن دونوں کا معصوم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، محفوظ عن الخطا کا درجہ دیا جائے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ چہارتا معصومین میں نظر نہ آتے ہوئے بھی علی کی طرح ہے، فاطمہ کی طرح ہے، حسن کی طرح ہے، حسین کی۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ تعالیٰ نے چہارتا معصومین سے الگ رکھ کر کے پورے قیامت تک ایک مثال قائم کر دیا ہے۔ عورتوں کے لیے ثانیہ زہرا کو مثال بنایا ہے، مردوں کے لیے عباس علمدار کو مثال بنایا ہے کہ دنیا یہ نہ کہے کہ چہارتا معصومین کی فضائل میں پڑ جائے، ایسے عبادت کرتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ کہہ کے ٹال دیا جائے وہ تو معصومین تھے، ہم تھوڑی ہیں۔ تو ہم کہیں گے کیا عباس معصوم تھے؟ کیا زینب معصوم تھی؟ زینب نے ایسے فضائل پیش کر دیے کہ عورتوں کے لیے مثال ہو گئی ہے، عباس نے اتنا بڑا درجہ پیش کر دیا کہ نوجوانوں کے لیے مثال کہ چہارتا معصومین میں نہ ہوتے ہوئے معصوم نظر آ رہے۔ بہت بڑی بات ہے، حالانکہ جیسا کہ حکیم نے کہا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ پھیلایا جائے تو پوری مجلس ہو جائے، صلوات بھیجا اللہ۔ لیکن آپ کو صرف چھروکے اور براتے استحلال دیے جا رہے ہیں، ایسی ایسی اہم باتیں کہ جو الحمدللہ آپ جا کے سوچتے جائیں تو اس میں بہت پہلو نکلتے چلے جائیں، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور ایک عالم دین یا ایک بہت پڑھا لکھا شخص جس کی تعریف اگر پوچھی جائے تو اس کی تعریف یہی ہے جو اپنے مقام کو پہچانے، جو اپنے جگہ کو پہچانے۔ اس لیے معصوم کا یہی درجہ ہے، محفوظ عن الخطا کا یہی درجہ ہے، ایک عالم دین کا یہی درجہ ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو کیسے پہچانیں گے،
कहा कि जो अपनी जगह को पहचानता बदौशे अला गैर पहले फवत, ये हदीस में तारीफ है, किसी चीज को उसकी जगह से हटा के रख देना ये जुल्म है, या जगह ना हो वहां पर बैठा देना ये भी जुल्म है। जबरदस्ती ज्यादा कभी कभी लोग जोश जोश में आके अब्बास अलमदार को न जाने क्या क्या कहते हैं, सलावत भेजना मतलब अल्लाह के काम जो समझदार मजमा ज्यादा मैं इशारा कर रहा हूँ, लेकिन अगर 5 साल की तरह या पहले जो मजमा छलक रहा होता था ऐसी बातें करना मुश्किल है। सलावत भेजना मतलब लेकिन यहाँ माशाअल्लाह मजमा जो है एकदम समझदार पढ़ा लिखा मिसालों को समझ रहा है कि जो दर्जा है वही देना चाहिए। यकीनन उसी में उनकी भी खुशी है। एकदम हम कह रहे कि नहीं अली है अब्बास, तो खुद कहेंगे हमको तो मिसले अली कहा गया है, हमको तो मिसले अली कहा गया, या हम एकदम कहते नहीं फातिमा है शहजादी देना, कहेंगे सानिया ज़हरा सानिया मानिंद है, तस्बीह दी गई है, पर अली अपना मकाम है, तो जो दर्जा है वही देना चाहिए, जो मकाम वही देना चाहिए। मकाम से न हटाना चाहिए न किसी और के मकाम को बैठाना चाहिए। या फिर मैं मिसाल देता माशाअल्लाह बेदार मजमा है, ये लेकर के जाएंगे हदीसें कैसा हो रही है, पंजतन हदीसें कैसा में आ चुके हैं, चादर के नीचे रसूलुल्लाह भी है, अली भी है, हसन भी है, हुसैन भी है और शहजादी ज़हरा भी है। बताइए उस वक्त जनाब ज़ैनब कहाँ थी? जिस हुजरे में ये वाकया हो रहा था, तो जो तारीख पढ़े हुए वो कहेंगे कि एक हुजरे के बगल में यानी तकरीबन 8-9 कदम के फासले से शहजादी ज़ैनब देख रही थी कि मेरी माँ चादर लेके पहुंच चुकी है और 3.5 साल की उम्र है। और पूरी दुनिया का दस्तूर ये है कि जहाँ माँ बाप होते हैं छोटा बच्चा दौड़ के पहुंच जाता है कि मेरी माँ मौजूद है, मेरा नाना मौजूद है, मेरे भाई मौजूद हैं। सानिया ज़हरा देख रही हैं, देखें यहीं से काबिलियत देखिए, फाजिलियत देखिए, क्या काबिला है, कैसी फाजिला है, कितनी पढ़ी लिखी है कि तकरीबन 3.5 साल की उम्र है, लेकिन चादर का गोशा देख रही है अंदर से, चादर के करीब नहीं आ रही, हुजरे से बार बार झांक रही है कि मेरा नाना लेटा हुआ है, मेरा पापा लेटा हुआ है, वहां से देख के करीब नहीं आ रही है। लेकिन 55 साल बीवी जिसका नाम उम्मे सलमा है वो दौड़ करके आ गई और जैसे ही चादर का गोशा उठाया रसूलुल्लाह ने कहा इन्नकी अला खैर, उम्मे सलमा तुम खैर पर हो, लेकिन चादर में तुम्हारी जगह, जो खैर पर होकर के ना आ सके तो जो शर पर हो वो कैसे आ सकते, जो जबल में आके सलवा भेजा रसूलुल्लाह ने सनद दिया इन्नकी अला खैर, उम्मे सलमा तुम खैर पर हो। 55 साल है लेकिन वो काबिलियत नहीं है, वो इतना ज्यादा तालीम नहीं है, नहीं जानती कि मेरा मकाम क्या, लिहाजा दौड़ करके आ गई। लेकिन जनाब ज़ैनब जानती है कि जो पंजतन का मकाम है वो मेरा मकाम नहीं है, लिहाजा पंजतन चादर के नीचे शहजादी नहीं आ रही है, इसलिए कि जो पढ़ा लिखा होता है अपने मकाम को जानता कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। सलवार भेजे आप बहुत गहरी बात ही आपसे मुस्कुरा के रह गएगा और सलवार भेजना क्या फजीलत है, क्या किरदार है, फजाइल का एक समंदर है। यकीन जानिए कि सिर्फ अगर लफ्ज़ ज़ैनब पर गुफ्तगू हो तो कई महीने तक हो सकती है। बड़ी किताबें लोग समझते हैं, कभी कभी तकरीर होती है तो 10-5 मिनट बोलते हैं, हम समझते शायद यही फजाइल है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत फजाइल है शहजादी ज़ैनब, बीबी ज़ैनब। और ऐसे ऐसे फजाइल है कि मैं मिंबर से अगर अर्ज़ कर दूँ तो इंशाअल्लाह ताला ये कहीं से दरोग नहीं हुआ, जो शहजादी सानिया ज़हरा के फजाइल वो पंजतन की भी नहीं। आप कहेंगे ये क्या हो गया, पढ़ते पढ़ते छठी मजलिस भी ये क्या जुमला कहेंगे, ये छठी मजलिस में छठा हुआ जुमला है, बहुत कीमती जुमला है कि वो फजाइल जो पंजतन में नजर नहीं आ रहे हैं वो सानिया ज़हरा में नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे किस तरह से, साबित कीजिए। हम साबित करते हैं कि शहजादी ज़ैनब को जो अल्लाह ताला ने फजीलत दिया है रसूलुल्लाह को भी नहीं मिली है, मौला अली को भी नहीं मिली है, जनाब ज़हरा को भी नहीं मिली है, इमाम हसन को भी नहीं मिली है, इमाम हुसैन को भी नहीं मिली। आप कहेंगे किस तरह से, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह पैदा हुए तो रसूलुल्लाह के ज़माने में कोई मासूम नहीं था जो आपको खिलाता, लिहाजा रसूलुल्लाह पल जरूर रहे हैं लेकिन गैर मासूम की आगोश में पल रहे हैं। रसूलुल्लाह को एक मासूम की भी आगोश नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब मौला अली पैदा हुए तो एक मासूम ने खिलाया है जिसको रसूल कहा जाता है। फातिमा जब पैदा हुई तो 2 मासूम ने खिलाया है, इमाम हसन पैदा हुए 3 मासूम ने खिलाया है, इमाम हुसैन पैदा हुए 4 मासूम ने खिलाया है।
دیں. یہ فضیلت ہے آپ کے لیے، بڑی خاص فضیلت ہے. اللہ اکبر. آپ غور فرمائیں کہ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام نے ایسا کلمہ فرمایا، ایسا جملہ فرمایا ہے، انت عالمۃ غیر معلمہ. یقیناً اے میری پھوپھی تو عالمہ غیر معلمہ ہے، کہ تجھ کو کسی نے پڑھایا نہیں لیکن تو عالمہ ہے. اور جس کی مجال ہے، جو عصمت ماں باپ اس پل رہی ہو، جس کو رسالت نے پالا ہو، عصمت و طہارت نے پالا ہو، امام حسن نے کھلایا ہو، امام حسین نے کھلایا ہو، مولا علی نے جس کو کھلایا ہو، یقین ہے میں گھر دیکھ رہا گھبرا رہا ہوں کہ فضائل کا ایک سمندر ہے، میں نے چھیڑ دیا ہے. ایک سلوات بھیجنا. اللہ اکبر. کہ کیا نسبت دیا ہے اور تعارف بھی کرایا ہے شہزادی زینب نے. چوتھے امام کا تعارف کربلا میں جو بیوی نے کرایا ہے، ایسا تعارف کوئی نہیں کرا سکا. شہزادی زینب یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہی، اس لیے کہ عالمہ ہے، فاضلہ ہے، قابلہ ہے، مفسرہ ہے. قرآن کی تفسیر جو بیان کیا گیا ہے کوفے میں بہت عالمی پیمانے پر بہت زیادہ مجمع ہوتا تھا، یہی بیوی تھی جو قرآن کے تفسیر کا درس دیا کرتی. تو باقاعدہ روایت میں ہے کہ مولا متقیان اپنی زوجہ سے کہتے جاؤ میری بیٹی درس دے رہی، قرآن کا درس سن کر کے آؤ. ایسے فضائل ہیں. لہذا جس بیوی کے اتنے کمالات ہو یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ فضائل بہت زیادہ ہے لہذا کیسے پڑھا جائے. ہم یہ کہتے ہیں ایک سمجھدار، ایک عقیل اور ایک فہم انسان اگر پیاسا ہے اور سمندر کو بہتا ہوا دیکھ کر کے بحر ذخار کے کنارے یہ کھڑے ہو کہے کہ پیاس تو لگی ہے کہ 100 گرام پانی پیے، لیکن اتنا بڑا سمندر ہے کون پیے گا. عقل مند کہے کہ جتنی پیاس لگی اتنا پی لو بقیہ چھوڑ دو. تو اسی طرح فضائل تو بہت زیادہ ہے. مالا یدرک مالا یدرک. اگر پورا درک نہیں کیا جا سکتا تو تھوڑے فضائل تو بیان کیے جا سکتے ہیں کہ عالمی پیمانے پہ کیا حیثیت ہے، آپ کو کیا کیا خطابات دیے گئے ہیں. لہذا جو تعارف کرایا ہے بی بی زہرا کو، ثانیہ زہرا کو، یقیناً یہ جو آپ نے چھیڑا ہے یہ ایسا ویسا مسئلہ نہیں، جانتی تھی کیا کرنا ہے. لہذا آپ نے جان بوجھ کر کے تعارف کرایا ہے کہ امام حسین کے بعد اب امام کون ہے. لہذا اتنی مصیبت میں اتنا بڑا کام کرنا بی بی زینب کا کام. صاحب کا کلمہ لہذا میں رک رک کے پیش کر رہا ہوں کہ خیبر چل رہا ہے، اندر جا کر کے ہلا کر کے کہہ رہی ہیں کہ بتاؤ بیٹا یہاں پر ہم جان دے دیں یا خیمے سے باہر نکلیں. یہ شہزادی جانتی ہے کیا کرنا ہے، لیکن دنیا کو بتانا امام وقت یہی ہے. امام وقت یہی ہے جس سے مسئلہ پوچھا جا رہا. عالمہ پوچھ رہی ہے، وہ بھی عالمہ غیر معلمہ پوچھ رہی ہے. اللہ اکبر. کیا فضائل ہے. لہذا جتنا جس کے فضائل ہوتے ہیں اس کا اثر اس کے بچوں پر پڑتا ہے. ماں کا اثر یقیناً ماں کی یہ فضائل ہے، یہ کمالات ہیں، تو بچوں میں کتنے کمال آئے ہوں گے، کیسے کیسے فضائل آئے ہوں گے. اور اپنے بھائی کو کتنا چاہتی تھی. باقاعدہ مولا علی کے لیے روایت ہے کہ مولا علی نے جب شادی کرنے کا وقت آیا بیوی کا تو شادی کرنے سے پہلے گئے ہیں عبداللہ سے ملنے کے لیے. عبداللہ سے ملاقات کیا اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ میری بیٹی زینب حسین کو کتنا زیادہ چاہتی ہے. عبداللہ سر جھکائے ہوئے ہیں کہ ہاں یقیناً یہ معلوم ہے. کہا کہ یہ بھی معلوم ہے بغیر حسین کے زینب رہ نہیں سکتی. ایک مرتبہ سر اٹھایا، اشارہ کیا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہا دیکھو میں عقد پڑھنے کے لیے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن مہر میں جو بھی مہر تمہاری طرف سے طے ہے تم کو ادا کرنا. اس میں ایک مہر یہ بھی ہے کہ جب بھی حسین کہیں جانے لگے میری بیٹی زینب کو روکنا، یعنی مہر میں قرار دیا ہے. اللہ اکبر. لہذا یقیناً ایک ایسا بھی وقت آیا کہ زینب کا دل بھرایا، آنکھ میں آنسو آ گیا. قافلہ تیار ہے، قافلہ آمادہ جانے والا ہے. اتنے میں اطلاع ہوئی کہ خیمے کا پردہ گھر کا جو ہے دروازے سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے. بیمار ہے عبداللہ، چلا نہیں جا رہا ہے. اپنے 2 غلاموں کے ساتھ آہستہ آہستہ غلام سنبھالے ہوئے عبداللہ کو لے کر کے آئے. شہزادی زینب گھبرا رہی ہے، میں نے تو شوہر سے اجازت لے لیا تھا، اب عبداللہ کیوں یہاں پر آ رہے ہیں. جیسے ہی عبداللہ سامنے آئے ہاتھ جوڑ لیا. بیوی تم کو منع کرنے نہیں آیا ہوں، تم کو روکنے نہیں آیا. معلوم ہے یہ کیسا سفر ہے، علاج کے بارے میں مجھے خوب خبر ہے. اگر بیماری نہ ہوتی ایسا وقت آ گیا تھا کہ ہم بھی جاتے اپنی جان قربان کرتے حسین پر. دیکھو ہم تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ 2 چھوٹے چھوٹے شیر ہیں جن کا نام اولو محمد ہے، ان کو لے کر کے جاؤ. اگر وقت پڑ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو ہمارے
कहाँ से हो? जाफर तैयार के पोते हो, अब्बास के भांजे हो। दोनों बच्चे सुने मादरे गिरामी क्या कहना चाह रही है। कहा देखो कल जब तुमको इजाजत मिल जाएगी, मुझे यकीन है कि पहले हमले में तुम फुरात तक पहुंच जाओगे, लेकिन याद रखना तुम्हारा मामू प्यासा है। सकीना प्यासी है, यकीनन जाफर तैयार के पोते हो। तुम्हारी ताकत में समझ रही हो, तुम्हारी कुव्वत में समझ रहे हो मेरे बच्चों। लड़ते लड़ते अगर तुम फरात के किनारे पहुंच जाना, खबरदार पानी की तरफ निगाह उठा के न देखना। छोटे छोटे बच्चे की इजाजत नहीं मिल रही है, एक एक करके आते जा रहे हैं। हुसैन मना करते जा रहे हैं, कभी हम को मना किया, कभी मोहम्मद को मना किया। एक बार तो ये बीवी ऐसे सामने आके बैठ गई जैसे कोई भीख मांगने के लिए बैठा हो। मेरे माँ जाए हुसैन, तुमको याद है कभी कुछ मांगा नहीं है, तो दानू होके बैठ गई। एक बार तो बच्चों को करीब बुलाया, हुसैन का सदका किया, कहा ये दोनों मैंने सदका कर दिया, पर आप इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इजाजत दे दी, हक के ज़ैनब का वास्ता। अरे जैसे ही इजाजत मिली, छोटे छोटे अमामे बना के रखे गए, आउन को तैयार किया गया, मोहम्मद को तैयार किया गया। शेरों की तरफ चलो रही है, एक तरफ से अब्बास दाब दे रहे हैं, एक तरफ से हुसैन दाब दे रहे हैं। बीबी ज़ैनब तो खैमे में सजदे के आलम में है, सजदे शुक्र कर रही है कि मैंने भैया को आज कुछ कुर्बान किया है, मेरा सदका काम आ गया है, मेरा ये निशावर काम आ रहा है। हाँ हाँ नींद हो। एक बार तो दोनों बच्चे रुखसत पाते हैं, लड़ते लड़ते जैसे ही फुरात के किनारे पहुंचे, बड़े ने छोटे भाई को देखा, छोटे ने बड़े भाई को देखा। एक बार तो इशारों में बात कर रहे हैं कि माँ ने कल क्या वसीयत किया थे याद है? अरे देखो ठंडा ठंडा पानी बह रहा है, लेकिन माँ ने कहा था खबरदार, ऐ अली के शेरों, ऐ जाफर तैयार के बहादुरों, ऐ अब्दुल्ला के दिल बहन, यकीनन वहां पहुंचने के बाद पानी की तरफ निगाह न उठाना। ये कह के दोनों अलग हो गए। आउन ने एक तरफ हमला किया, मोहम्मद ने दूसरी तरफ हमला किया, लेकिन भूखे बच्चों प्यासे बच्चे कब तक लड़ते? अरे एक ही वक्त में दोनों की आवाज आई, ऐ मामू जान, आखिरी सलाम। हाँ हाँ बात बुलंद करे, यकीनन सारी दुनिया में है, कहीं आउन का मातम हो रहा है, कहीं मोहम्मद का मातम हो रहा है, कहीं शहजादी ज़ैनब का सद्दे शुक्र देखा जा रहा है, कहीं सब्र हौसले को देखा जा रहा है। हाँ हाँ, अरे दोनों ने जैसे ही कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे मामू जान सलाम कबूल कर लो। जनाजा तो है, हुसैन कैसे आगे बढ़े, अब्बास अलमदार साथ साथ जा रहे हैं। एक जनाजा हुसैन ने उठाया, एक जनाजा अब्बास ने। अरे जैसे ही खैमे के करीब जनाजे आए, वहां का दस्तूर ये था कि जब भी मक्तल से कोई लाश आती थी, सारी बीवियां घेर लेती थी, वहां मोहम्मदा, वहां अलिया, वहां कासिमा। अरे हुसैन ने क्या देखा, और मोहम्मद की मां नजर नहीं आ रही है। अरे जैसे ही खैमे के करीब गए, क्या देखा, खैमे में सजदे के आलम में बीवी दोनों हाथों को बुलंद करके गए, परवरदिगार तेरा शुक्रिया। और ने सुरखरू कर दिया, मोहम्मद ने सुरखरू कर दिया। मेरे माँ जाए पर दोनों कुर्बान हो गए, मेरे सदके को खुदाया कबूल कर लेना। और को मैंने कुर्बान कर दिया, मोहम्मद को मैंने कुर्बान तवस्सुल को कबूल फरमा, हम सबकी आखिरत बखैर फरमा, पानी मोहतरम से बिना को कबूल फरमा, सामीन हज़रात से समाज को कबूल फरमा, इस हकीक से मुख्तसर से दिक्र को कबूल फरमा। हम सबके लिए दिक्र को दरगाह आखिरत को कब्र करा दे, आखिरत में शफाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद से महरूम न फरमा। हमारे घरों में बरकत नाज़िल फरमा, हमारे मुल्क में बरकत नाज़िल फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा, अज़ादारी की हिफाजत फरमा, अलम ताज़िया की हिफाजत फरमा, हमारे जुलूसों की हिफाजत फरमा, हमारे समीलों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे जुलूस मजलिस अज़ादारी और अज़ादारों का जिसकी नीयत खराब है और जो मुखबिरी करना चाहता है और मजालिस को
निस्नाबूद फरमा दे, तमाम दुश्मनान इस्लाम को निस्नाबूद फरमा दे, अदादारी के दुश्मनों को निस्नाबूद फरमा दे। सारी कायनात में जो भी दुश्मन है मौला के चाहने वाले के चाहे वहाबियत और काफिर मुस्लिम मुमीन हो, परवरदिगार काबिल हिदायत के सबको निस्नाबूद फरमा दे। हम सबको सही माने में मौलाई बना दे, सही माने में हुसैनी बना दे, सही माने में नमाजी बना दे, सही माने में अदादार बना दे। हमारे मौला को हमारे अमाल से राज़ी फरमा दे।